the things. General shear failure is happens when the strain is less than 5%, or angle of shearing resistance greater than 36 degrees, or SPT test में number of blows greater than 30, और relative density उसका relative density का definition देख लो आप, that is greater than 70 degrees. So these are the 4 stats you should remember, you should have in the mind, because in the MCQs such questions may be asked. I don't know what type of examination you are going to face. If the corona increases, you may face again online exam, which is favorable for you people. So at that time, they may not be asked you all the detailed things, but small MCQs they will ask, and there such things you should remember very well. What is the value of general shear failure in strain? He may ask. What is the angle of, suppose if the angle of shear stress is 52 degrees, what type of failure takes place? If it is greater than 36 degrees, it is general shear failure. So these things should be very much clear to you. General shear failure is when strain is less than 5%, and when angle of shearing resistance is greater than 36 degrees, and number of blows is greater than 30, and relative density is greater than 70 degrees. ये सब अगर से वैल्यूज हो गए, जस्ट अ मिनट, ऐसे मैं क्लास ले रहा हूँ बाद में बात. So now the thing is, these are the 4 values you should remember. Okay, the thing is clear. उसमें सबसे ज्यादा तो ये important है, phi is greater than 36 degrees है, तो ये general shear failure है. I hope general shear failure is very much clear to you. Okay, now coming to local shear failure. What is local shear failure? Local shear failure में क्या होता है यहाँ पर, कि यहाँ पर everything I have given here, I will explain you the things, you can read it yourself also. I will send these notes to you on the group today. तो local shear failure में क्या होता मालूम है? Local shear failure में soil और weak रहता general shear failure से, और यहाँ पर compressibility उससे भी ज्यादा रहती है, और यहाँ पर fully face develop नहीं होता, फिगर फुल डेवलप नहीं होता जैसा जनरल शेयर फेलियर में हुआ था. यहाँ पर इस टाइप का फिगर होता. इलास्टिक जोन तो बनता ही बनता है, इलास्टिसिटी क्योंकि शुरू का लोड तो लेता ही लेता है, इलास्टिक जोन तो हर जगह बनेगा. उसके बाद प्लास्टिसिटी आने के बाद सिर्फ इतना ही फिगर बनेगा. यहाँ स्ट्रेस कुछ इधर ट्रांसफर होता ही नहीं, मतलब कोई अच्छी चीज नहीं है ये. वहां स्ट्रेस ट्रांसफर होता तो ऊपर जाके बिल्डिंग बच जाता आपका, एट द मोस्ट टिल्ट हो सकता. यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं होता, स्ट्रेस ट्रांसफर नहीं हुआ तो बिल्डिंग धस जाता. तो यहाँ पर जो है बिल्डिंग धसता ज्यादा, मतलब धसता इन द सेंस सिंक होता, सेटलमेंट होके सिंक होते जाता. तो यहाँ पर फुल्ली सरफेस डेवलप नहीं होता. दिस इज द लोकल शेयर फेल्यूर. एंड व्हेन यू ड्रॉ द लोकल शेयर फेल्यूर में लोड और सेटलमेंट का कर्व जब ड्रॉ करेंगे आप, when you draw the curve between load और settlement का कर्व ड्रॉ करेंगे आप, तो वहां पर आपको एक कर्व मिलेगा, लेकिन एग्जैक्ट पॉइंट नहीं मिलेगा जहां पर आपको बोल सकते कि ये मैक्सिमम लोड है. लेकिन आप थोड़ा बहुत कोशिश करके निकाल सकते, जहां कर्व टाइप आता वहां टैंजेंट बना के निकाल सकते, मतलब थोड़ा बहुत विजिबल है, जैसा क्लियर विजिबल जनरल शेयर फेल्यूर में है मैक्सिमम लोड, यहां पर नहीं है, यहाँ पर नहीं है. सो दिस इज ऑल अबाउट लोकल शेयर फेल्यूर. तो लोकल शेयर फेल्यूर के कैरेक्टरिस्टिक्स देखेंगे हम क्या क्या है. लोकल शेयर फेल्यूर के कैरेक्टरिस्टिक्स देखो, सिग्निफिकेंट कॉम्प्रेशन ऑफ सॉइल बिलो द फुटिंग एंड द पार्शियल डेवलपमेंट, मतलब यहाँ पर पार्शियल डेवलपमेंट हो रहा, फिगर पूरा नहीं हो रहा. फेल्यूर इज नॉट सडन हियर, एंड यहाँ पर टिल्टिंग नहीं होता, जबकि टिल्टिंग जनरल शेयर फेल्यूर में टिल्टिंग होता, तो यहाँ पर टिल्टिंग नहीं होता. यू शुड रिमेंबर दिस. Failure surface is not well defined. It is not well defined here, whereas it is well defined there in case of general shear failure. Failure surface does not reach the ground surface. यहाँ तक ग्राउंड सरफेस तक ज्यादा ही नहीं, और बल्जिंग उतना नहीं होता जितना जनरल शेयर फेलियर में होता. Failure, I am going a little bit fast because these all things I told you. I think failure surface is, I think Sandeep is facing problem in joining. Okay, failure is surface is not well defined. This also I told you. Failure is characterized by considerable settlement,
and well-defined peak is absent here. But the most important thing is you should know what are the main characteristics of local shear failure. You should remember. So what are these? First of all, strain is large here. Strain there in general shear failure is less than 5%, but here it is greater than 10 to 20% in a soil. Correct? Local shear failure is accompanied by a large strain here. Strain is greater than 10 to 20% in a soil. And here phi is less than 28 degrees. Phi is less than 28 degrees. And here number of blows is less than phi. Number of blows is less than phi. वहां ग्रेटर देन 30 था, है ना. हैविंग लो रिलेटिव डेंसिटी, डेंसिटी ज्यादा था, रिलेटिव डेंसिटी मतलब डेंस था वो. यहाँ पर लूज डेंसिटी है, ये 20% है. सो दीज ऑल फोर वैल्यूज आल्सो यू शुड रिमेंबर. द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज व्हेन फाई इज ग्रेटर देन 36 डिग्रीज इट इज जनरल shear failure. When phi is less than 28 degrees it is local shear failure. ये आप अच्छी तरह याद रखो. When phi is greater than 36 degrees, it is general shear failure. When phi is less than 20 degrees, 28 degrees, it is local shear failure. Now you may ask, sir, what about the 30? What about 32, which lies in between 28 and 36? Regarding this, I will tell you when I will solve the problem. Okay, so when it is greater than 36, clearly it is general shear failure. When it is less than 28 degrees, it is clearly local shear failure, angle of shearing resistance. I hope now local shear failure is also very much clear to you. Local shear failure is also very much clear to you. Now the last type is पंचिंग shear failure. तो पंचिंग shear failure का फिगर बताता हूं मैं आपको. तो पंचिंग shear failure का जो फिगर है, इट इज लाइक दिस. कोई स्ट्रेस डेवलप नहीं होता, कुछ नहीं होता. यहाँ पर जैसे ही लोड गिरता, शुरू में थोड़ा बहुत ट्रायंगल बनता, इलास्टिक जोन होने तक आपका फुटिंग बर्दाश्त कर सकता. उसके बाद क्या होता, कोई स्ट्रेस डेवलप नहीं होता, किसी को कोई तकलीफ नहीं देते, ये डायरेक्टली धंसने शुरू हो जाता. सॉइल इज वेरी वीक. जैसा कि पतला आपका क्ले है या लूज सैंड है. लूज सैंड में आपके पैर रखो, समुद्र के किनारे जाके पैर रखो, आपका पैर धंसता. उससे भी और लूज है तो आप अंदर घुसने शुरू हो जाते. अगर से क्ले स्टिफ है तो कुछ नहीं होता, लेकिन अगर से सैचुरेट मतलब बहुत सारा पानी है और लिक्विड टाइप है तो पैर आपके धंसने शुरू हो जाते. तो सच इज द केस हियर. सच इज द केस हियर एंड दिस इज वेरी डेंजरस. सपोज आप यहाँ बिल्डिंग बनाए तो आपका बिल्डिंग धंसने शुरू हो जाता. एक दिन में नहीं धंसता, बट धीरे धीरे धंसने हो जाता. बट ऐसा केसेस कम ही होते, बट दिस इज द केस. ओके, सो नाउ दिस आई एक्सप्लेन इन द लास्ट क्लास आल्सो इन डिटेल. फिर एक बार आपको थोड़ा याद रखने के लिए करा रहा हूँ. और उसके बाद मैं आपको बोला कि टिल्टिंग होता है जनरल शेयर फेलियर में, और लीनिंग टावर ऑफ पीसा का मैं एग्जांपल भी दिया आपको, जो टिल्टिंग से क्या होते जा रहा, धीरे धीरे स्लोली क्या हो रहा, बिल्डिंग ऊपर टिल्ट होते जा रहा. और टिल्ट होने से क्या हो रहा मालूम है, ऑफ कोर्स वो लोग कुछ ग्राउंड इंप्रूवमेंट टेक्निक अप्लाई कर सकते, उसको स्ट्रेट कर सकते, बट वो टिल्ट होने से उसकी ब्यूटी बढ़ रही. और इट इज वन ऑफ द वर्ल्ड्स टूरिज्म अट्रैक्शन. तो वहां पर जो टिल्टिंग ऑफ बिल्डिंग है, तो इट इज बिकॉज ऑफ द सॉइल इज वीक देयर. सॉइल इज वीक देयर, कंस्ट्रक्शन हो गया. सो सच थिंग हैपेंस व्हेन जनरल shear failure takes place. Got it? Now this is the common question to be asked. What is the distinction between general failure, general shear failure, local shear failure? What is the difference between general shear failure and local shear failure? So this occurs in dense and stiff. ये सब तो मैं आपको बोल चुका हूँ, ये वैल्यूज भी बता चुका हूँ, ये सब नोट्स देता हूँ मैं आज आपको, ग्रुप पे डाल देता हूँ, आप देख सकते हैं. रिजल्ट बट ये टॉपिक बहुत अच्छी तरह पढ़ो आप. Whoever said the question पर पहला क्वेश्चन यही रहेगा. राइट द डिफरेंसेस बिटवीन जनरल. मैं आपको मैक्सिमम इधर उधर से ढूंढ के लिख के रखा हूँ इसमें. यहाँ पर स्ट्रेन इज स्मॉल, स्ट्रेन इज ग्रेटर देन. फेलियर पैटर्न इज वेल डिफाइंड एंड क्लियर. हियर इज फेलियर पैटर्न इज नॉट एट ऑल वेल डिफाइंड. हियर वेल डिफाइंड पीक पॉइंट है, यहाँ पीक पॉइंट वेल डिफाइंड नहीं है. यहाँ पर बल्जिंग फॉर्म हो रहा है, यहाँ बल्जिंग नहीं हो रहा. ये शॉलो फाउंडेशन में बनता, ये डीप फाउंडेशन में होता. यहाँ शॉलो फाउंडेशन में जनरल शेयर फेलियर होता है. इट इज नेचुरल. यहाँ पर सडन है फेलियर, यहाँ नहीं है, ग्रेजुअल है. यहाँ लेस सेटलमेंट है, टिल्टिंग ज्यादा है.
यहाँ पर सेटलमेंट ज्यादा है. So ये सब आपको मैं just I am revising the things because already I taught you all these things. Okay, after completion of all these things, now shall we move for the important topic, that is Terzki's analysis. Terzki's analysis. देखिए, now 2-3 minutes I will take how you are going to study. से हर आदमी का अपना अपना एम है. Now you are, I mean, quite matured and आप लोग हमारे मेरे हम लोगों के बराबर ही है. May not be in age, but status में आप लोग पीजी में आ गए, मतलब more than student, you are just like colleagues. तो मैं आपको यहाँ पर बताऊं कि how you are going to study, ये बहुत मैटर करता है. पास फेल छोड़ दो, मैं आपको बार बार बोल रहा हूं. आप लोग पता नहीं इट इज फॉर्चुनेट और अनफॉर्चुनेट, आई डोंट थिंक ड्यूरिंग कोरोना टाइम्स यू आर स्टडिंग. Sometimes such things help you. Corona is helping you. Of course, I also benefited from this one. Without going here and there on online only, I have completed my PhD also. I am also of your league only, but you are getting advantage here. So the thing is, what I want to say here is, please, in detail you study, especially subject, pass, fail, especially this subject I am again and again telling. पास होना क्या है, अगर से कोरोना ज्यादा होगा तो डेफिनेटली ऑफलाइन एग्जाम होंगे नहीं, ऑफलाइन एग्जाम नहीं होंगे तो ऑनलाइन होंगे. ऑनलाइन में वही 50 क्वेश्चन आएंगे, वही आपको लिखना है, वही गूगल में टाइप करते, इधर उधर देखते, पूछ के लिखते, आप पास हो जाते. पासिंग फेलिंग इज नॉट एट ऑल इम्पोर्टेंट. इफ यू वांट टू मेक अ गुड करियर, हैव अ गोल, और आपको क्या करना है वो देख के पढ़ाई करो आप. Okay, so now next topic which I am teaching is Terzki's analysis. I will go in detail और आप अच्छी तरह से समझो उसको, और not from the examination point of view, from the understanding point of view. Okay, so now we will start Terzki's analysis. Terzki is called father of geotechnical engineering, and almost maximum things are derived or found by Terzki only. So now Terzki, Terzki, whatever the pronunciation you make, that is different thing. So now what he did is, when the load is, of course, whatever the derivation he did is for shallow foundation only, that you remember. सर आप पूरा फिगर बताए, जनरल शेयर फेल्योर का है या लोकल शेयर फेल्योर होता तो ये डेरिवेशन बनता क्या, डेरिवेशन नहीं बनता. पंच्ड हुआ तो बनता क्या, नहीं बनता. तो ये डेरिवेशन करने के लिए हमको पहले मान के चलना चाहिए कि यहाँ पर शैलो फाउंडेशन है, यहाँ पर हम कुछ अज्यूम्शंस करते, यहाँ पर अज्यूम्शंस करते. तो व्हेन दिस बिल्डिंग is there, so इसमें कैसा फेलियर सरफेस बनता, और ये QF मतलब ग्रॉस प्रेशर इंटेंसिटी है. तो इसको अवॉइड करने के लिए मैं कितना अल्टीमेट बेयरिंग कैपेसिटी देना, तो वो जो हम फॉर्मूला डिराइव कर रहे, द फॉर्मूला विच वी आर गोइंग टू डिराइव is called Terzki's bearing capacity derivation, and I'm going to teach you that. But before that, certain assumptions you have to make before this starting the Terzki's analysis. Before starting Terzki's analysis, you have to make certain assumptions. And what are those assumptions? Actually, I have to tell you afterwards also and before also. First also I will tell you, because some things you may not understand, that you can, once again I will tell after derivation also. So what are the assumptions? Now the question you may ask, so why these scientists or whoever engineers derived all these things, make the research, make the assumptions. You will find assumptions everywhere. In structural analysis also, theory of simple bending करो, assumptions आते, और आप टॉर्शन करो, assumptions करते. तो कोई भी डेरिवेशन से पहले, कोई भी एक कॉन्सेप्ट से पहले assumptions क्यों करते? तो assumptions इसीलिए करते क्योंकि आपको एक पर्टिकुलर वैल्यू निकालना है. ये थोड़ा, ये मैं आपको बार बार बोल रहा हूँ, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर पीजी स्टूडेंट्स. आपको कोई भी एक डेरिवेशन डायरेक्ट नहीं आता, तो आपको ये नहीं बोलना कि मुझे यहाँ से गोपालपुर जाना है तो मैं आसानी से कैसा जा सकता हूँ. मुझे शुरू में आपको ये रोड नहीं रहता जो अब है, ऑफ कोर्स अभी भी खराब, ये अलग बात है. मतलब आपको बोलने का मतलब, व्हाट आई वांट टू टेल इज, बिफोर मेकिंग एनी डेरिवेशन और एनी concept, you have to make certain assumption, and based on that assumption only we derive something or we develop some concept. लेकिन अब वो जो डेरिवेशन करे, आप जो कॉन्सेप्ट करे, क्या
उसी अजम्पशंस पे चलेंगे? ऐसा तो हो नहीं सकता। अब मैं मान के चल रहा हूं यहां पर तेजगिर एनालिसिस कि सॉइल इज होमोजीनियस एंड आइसोट्रोपिक. Is it necessary that always? Of course, whatever the derivation I will make, it is for homogeneous soil only. And what one more thing, what assumption I am making, that water table is at a greater depth. Water table is at a greater depth. Is it possible that always the water table should be at a greater depth? Not at all. It may be near to the ground surface. Then whatever the things, whatever the Terzgi has derived, is it wrong? Now the such question arises. But suppose if Terzgi didn't assume these things, he didn't make all these assumptions, he wasn't able to develop that starting equation also. तो पहले हम क्या करते, कुछ assumptions करके एक इक्वेशन निकाल देते उस सॉइल के लिए, उस पर्टिकुलर assumptions के लिए. उसके बाद जो और डेवलपमेंट होता, that is called research. तेर्सगी किया, होमोजेनियस सॉइल के लिए डेरिवेशन किया, तो यू आर हैविंग, आई मीन आपको चांस है. आप अब क्या करते, नेक्स्ट आप हेट्रोजेनियस सॉइल लेते और तेर्सगी क्या किया उसको या तो गलत प्रूव करते या बोलते कि नहीं तेर्सगी करे सो सही है. दिस इज द रिसर्च. व्हाट इज रिसर्च? नाउ दिस इज ओनली द रिसर्च. तो लेकिन तेर्सगी तो शुरू में तो कुछ अज्यूमशन करना पड़ेगा ना. सो दीज आर द अज्यूमशंस any I mean scientist or any academician make before making any statements. Okay, so Terzgi has made here certain assumptions. One by one I will show you. What he made in the beginning is soil is homogeneous and isotropic. समय आपको डिटेल में बताते नहीं बैठ सकता. Homogeneous means it is made up of same material. Here the soil is made up of same material. Whatever the things he derived by assuming that soil is homogeneous. Isotropic means it is having equal elastic properties in all directions. Whether it is X, Y or Z, any direction you take, he is having equal elastic properties are there. The first assumption he made is soil is homogeneous and isotropic. Got it? Second, the shear strength is represented by Mohr-Coulomb criteria. Of course, without Mohr-Coulomb criteria, ये क्या है आप डिटेल में पढ़ो थोड़ा, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में यूज होता है आपको. तो Mohr-Coulomb criteria, टाउ इज इक्वल टू, है ना, सी tan phi प्लस सिग्मा, वो फॉर्मूला, उसके ऊपर बेस्ड है shear strength इसका. ये जो हमको पता है. नेक्स्ट थिंग इज the footing is of strip footing type with a rough base. The footing is of strip footing type with rough base. मतलब footing कैसा है आपका, strip type का है. अगर से स्ट्रिप टाइप मतलब क्या होता है मालूम है? स्ट्रिप किसको बोलते हैं? अलग अलग टाइप के शैलो फाउंडेशन है. मैं आपको व्हेन आई टीच शैलो फाउंडेशन आई विल टेल यू व्हाट इज स्ट्रिप फाउंडेशन, व्हाट इज स्ट्रैप फाउंडेशन, व्हाट इज मैट फाउंडेशन, व्हाट इज रैफ्ट फाउंडेशन. ओके, तो स्ट्रिप फाउंडेशन में क्या होता है, लेंथ ब्रेड्थ से बहुत ज्यादा बड़ा लंबा रहता है. मींस लेंथ इज ग्रेटर देन 5b, देन द फुटिंग इज कॉल्ड स्ट्रिप फुटिंग. तो जो हम अज्यूमशन कर रहे हैं यहाँ पर वो स्ट्रिप फुटिंग है. स्ट्रिप इसीलिए है क्योंकि जो भी आपका फेल्योर सरफेस डेवलप हो जाएगा, that should be for I mean longer distance. The footing is of strip footing type with a rough base. Base is rough. It is essentially a two dimensional. हम जो भी कर रहे हैं टू डायमेंशनल कर रहे हैं. यहाँ पर हम थिकनेस कंसीडर नहीं कर रहे. थिकनेस को हम 1 यूनिट मान के चलते, सिर्फ 2 डायमेंशन ले रहे हैं हम, एक्स एंड वाई. अगर से कहीं पे थिकनेस आ रहा कैलकुलेशन करने का, उसको हम मानते इट, वी अज्यूम इट एज 1. We assume it as 1. Then elastic zone has straight boundaries inclined at an angle equal to phi to the horizontal, at an angle equal to phi to the horizontal. इसका मतलब क्या है, elastic zone जो शुरू में आपका डेवलप हो रहा, elastic zone जो यहाँ पर डेवलप हो रहा, ये elastic zone ट्रायंगल जो हो रहा, वो क्या बोलता, इसके बाउंड्री जो है वो स्ट्रेट है, जबकि ये जो प्लास्टिक है ना, रेडियल शियर, इसके स्ट्रेट नहीं है बाउंड्रीज. देखो एक कर्व्ड है, पैराबोलिक कर्व्ड है, जबकि हो सकता है आपको थोड़ा कर्व स्ट्रेट नहीं भी दिख रहा, तो ट्रायंगल का मान लो इट इज टोटली स्ट्रेट. ये जो एडी और बीडी जो साइड्स है ये स्ट्रेट है. तो व्हाट ही इज अज्यूमिंग दैट इलास्टिक जोन के जो भी साइड्स है these are straight and they are making an angle
साई यहाँ पर, और इस साई का वैल्यू रहता फाई। तो हम क्या मान के चल रहे, जोन 1 जो है इलास्टिक जोन है, और इलास्टिक जोन के बाउंड्रीज स्ट्रेट है, और द एंगल विच इट इज मेकिंग विद द हॉरिजॉन्टल इज फाई। The angle which it is making with phi with horizontal is phi. That is the next assumption he has made. Apart from that, failure zone is not extended above and beyond the base of the footing. Of course, shear resistance of soil above the base of the footing is neglected. Okay, method of superposition is valid here. Superposition means two things can be added. So superposition, principle of superposition of पढ़े सो सॉम में, that is valued here. सबसे important है, passive pressure force has 3 components. Now the thing is, passive pressure क्या है, active pressure क्या है, ये मैं आपको थोड़ा ये बता के फिर आगे बढ़ता हूँ. देखिए active pressure क्या होता मालूम है, again and again I am telling, if I telling some basic things means definitely they are going to be useful for you. As you are doing MTech structure, you may not be needed that much knowledge of geotechnical engineering, but the thing is, if I say something, if I define basic things, it is going to help you for any examinations. So active pressure क्या है, passive pressure क्या है, वो आपको मालूम होना, और यहाँ पर passive pressure ही क्यों develop हो रहा इसमें. And I still remember those days when you were in 3rd year. Most of the students are my ex-students only, and you used to troll me too much in the beginning. अभी भी याद है मेरे को, एक चीजें सुनते नहीं थे बराबर, क्लास में गड़बड़ करते रहते थे. At least now you are enough matured. Please listen carefully here. So now, what is passive pressure here? यहाँ पैसिव प्रेशर ही क्यों आ रहा, एक्टिव क्यों नहीं आ रहा? तो एक्टिव प्रेशर उसको बोलते हैं, सपोज करो देखिए रिटेनिंग वॉल है या सॉइल रहता, ये वॉल रहता, वॉल के बगल में सॉइल रहता. सॉइल जो है अगर से वॉल पे प्रेशर डाल रहा, सॉइल का प्रेशर वॉल पे गिर के वॉल क्या हो जाता, प्रेशर अवे मूव होता, मतलब सॉइल से वॉल अवे मूव होता. ये कब होता, जब सॉइल का प्रेशर वॉल पे ज्यादा गिरता, एंड दिस टाइप ऑफ प्रेशर इज कॉल्ड एक्टिव प्रेशर. दिस इज एक्टिव प्रेशर. और पैसिव प्रेशर इसका उल्टा रहता, यहां पर वॉल की तरफ से सॉइल की तरफ, वॉल क्या करता, सॉइल की तरफ घूमता, सॉइल की तरफ आना शुरू हो जाता, क्योंकि इधर वॉल का प्रेशर सॉइल के ऊपर गिरता. दिस इज कॉल्ड पैसिव प्रेशर. तो यहां पर हमारा जो पर्टिकुलर फिगर है, देखिए यहां पर ये बेसिक जोन है, ये भी पार्ट है, ये जो है इधर सराउंडिंग सॉइल है. तो नोट करो, ये फुटिंग का जो बेस है जहां पर इलास्टिक जोन डेवलप हो गया, ये सॉइल के ऊपर प्रेशर डाल रहा, तो मतलब वॉल सॉइल के ऊपर प्रेशर डाल रहा. दैट्स व्हाई यहां पर क्या डेवलप हो जाएगा, पैसिव प्रेशर डेवलप हो जाएगा. दैट इज द वेरी इंपॉर्टेंट थिंग हियर. ओके, दिस इज द passive pressure here. So now coming to here, what the assumption Teisgi has made is passive pressure force has 3 components. Of course, passive pressure is developing, it's okay. You people are also agreeing, but what he says further that this passive pressure he is having 3 components. Because of 3 things, the passive pressure is developed here. Because of 3 things, the passive pressure is developed here. The first one is कोहेजन. सॉइल में कोहेजन रहता, फ्रिक्शन भी रहता, कोहेजन कहां ज्यादा रहता, फ्रिक्शन कहां ज्यादा रहता, ये आपको सब पता है, बेसिक चीजें हैं. हाँ, तो सॉइल में कोहेजन जो रहता, उसकी वजह से जो पैसिव प्रेशर होता है एक. दूसरा सरचार्ज, ऊपर के जो लोड आते उसकी वजह से तो भी पैसिव प्रेशर आता. और तीसरा वेट ऑफ शियर जोन, जो शियर जोन का वेट रहता उसकी वजह से भी पैसिव प्रेशर होता. तो पैसिव प्रेशर यहां पर डेवलप होता, you also agree with it. And second thing is this passive pressure is made up of 3 components. This passive pressure is made up of 3 components. One is because of cohesion, second is because of surcharge, and third is because of weight of shear zone. Weight of shear zone. So passive pressure is because of these 3 things. Because of cohesion, because of surcharge, and because of weight of shear zone. Weight of shear zone. Clear things? So अभी assumption करें हम, जब derivation करते ये तीनों भी consider करते हम.
Passive pressure because of cohesion, passive pressure because of surcharge, and passive pressure because of shear zone. Passive pressure because of shear zone. Got it? Then next assumption is effect of water table is neglected here. तो हम क्या मान के चलते रहे यहां पर डेरिवेशन करने से पहले कि वाटर टेबल इज टू डीप. It is not near the ground surface. It is not near the footing. So what happens when the water table is near the ground surface? What happens when it is near to the footing? What happens when it is in between footing and ground surface? This we'll study further. उसके लिए अलग टॉपिक है. उसके बाद और कोई नया आया या हो सकता है तेजगी किया होगा और डेरिवेशन. यहाँ तो अज्यूम करके डेरिवेशन कर दिया. लेकिन अब आगे ये पूछा कोई कि वाटर टेबल आया तो आपका बेयरिंग कैपेसिटी को क्या होने वाला है. तो ओनली तेजगी हैज डेवलप्ड अगेन कि अगर से वाटर टेबल आया तो उस वक्त इसमें और चेंजेस क्या होते हम अलग से टॉपिक है वो भी हम पढ़ेंगे. बट हियर व्हाट वी आर अज्यूमिंग दैट द इफेक्ट ऑफ वाटर टेबल इज टोटली नेग्लेक्टेड. इफेक्ट ऑफ वाटर टेबल इज टोटली नेग्लेक्टेड. नेक्स्ट इज footing carries concentric and vertical loads. मतलब यहाँ पर लोड जो भी है यूडीएल टाइप हम नहीं कंसीडर करते. फुटिंग को सारा एक पॉइंट लोड जैसा लेते ना वैसा लेके लोड को हम डिराइव करते. नेक्स्ट डेरिवेशन इज footing and ground are horizontal. Of course we are assume this as they are totally horizontal and the properties of foundation soil do not change ड्यूरिंग द shear failure. shear failure होते समय सॉइल के प्रॉपर्टीज चेंज नहीं होते. सॉइल के प्रॉपर्टीज चेंज नहीं होते. दिस आल्सो वी स्टडीड. दिस आल्सो वी स्टडीड. So these are the important assumptions we make and this is the common question to be asked. If you have any doubts, please be frank, clear. You can call me at any time. सर ये समझ में नहीं आ रहा है. अब देखिए ऑनलाइन है यहाँ तो मैं अब जितना कर सकता हूँ उतना कर सकता हूँ. फिर भी कोई चीज आपको समझ में नहीं आ रहा, पर्सनल अटेंडेंस आप चाहते या पर्सनल केयर चाहते, कोई नोट्स है या कोई चीज है तो यू आर ऑलवेज फ्री. या मैं मेरा लैंग्वेज का कोई प्रॉब्लम है और समथिंग लाइक दैट और कोई स्पीड उड़ कुछ ज्यादा कम हो रहा, यू आर पीसी लेवल पे थोड़ा स्पीड बढ़ना ही चाहिए. तो और कुछ है आपको तो और बहुत सा चीज आप पढ़ चुके हैं पहले भी. दैट्स व्हाई थोड़ा मैं हो सकता है फास्ट भी जा रहा हूँगा लेकिन आई एम रिपीटिंग एंड रिपीटिंग अगेन एंड अगेन. दैट्स आल्सो एडवांटेजेस हियर. मे बी आई एम लिटिल बिट फास्ट but the thing is I am repeating again and again. So these are the assumptions we make. Now what happens, the zoom will stop for after 1 minute, so you can have a rest of 2-3 minutes and then again you can join. Okay, now the things are clear to you. What are the assumptions? सबसे पहले हम टेल्सगीज एनालिसिस स्टार्ट करें और टेल्सगीज एनालिसिस स्टार्ट करने से पहले हम कुछ assumptions करते हैं. And what are those assumptions? I told you one by one in detail. One by one in detail. Got it? Okay, have a break of 2-3 minutes. And today I will give you all these notes. I will send in the group so you can read. I'll always the better thing is ये derivation सब मैं इससे लिया. थोड़े notes आपको शायद पूर्णिमा में नहीं मिलेंगे. ये different